Okay, not explicitly discussed till now, but let's see the basic memory operations, which is the reading and the writing operations. Okay, so these two are considered as the write and the read operation are considered the two basic memory operations, because the write operations are required in the RAM is mainly, and the read operation is mainly the part of ROM. While in RAM we use both read and write equally. Okay, addressing is the process of accessing a specified location in a memory. So you know this first thing. Okay, this is the very basic thing. First, whatever the location we want to read or write, we first know the address. That is called the addressing of that location. Okay, so we should know the address where we want to do any particular memory operation, read or write. Since the memory stores binary data, data must be put into memory, and data must be copied from the memory when needed. The write operation puts data into a specified address in the memory, and the read operation copies data out of specified address in the memory. So ये दो चीजें आप याद रखिए. Okay, so ये basically read और write को define करता है. राइट ऑपरेशन क्या करता है, इस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड मेमोरी पर डेटा को राइट कर देता है, जाके प्लेस कर देता है. ठीक है. और रीड ऑपरेशन क्या करता है, उस मेमोरी में जो भी डेटा पहले से स्टोर है उसको जाकर के रीड कर लेता है, कॉपी कर लेता है, एक तरीके से सप्लाई कर देता है. The addressing operation, you might be studying the microprocessor, so you are more aware of this addressing system. Okay, so addressing operation, which is part of both the write and the read operation, selects the specified memory address. तो हमें एड्रेसिंग अलग से करनी होती है. ठीक है. ये डिसाइड करना कि कौन सा ऑपरेशन होगा, इट इज डिसाइडेड बाय अ सेपरेट कंट्रोल लाइन और द कंट्रोल सिग्नल, but the address is defined by address lines, at which address we want to do read or write operation. Okay, so addressing is very important part. Okay. Okay, so data units go into the memory during a write operation and come out of memory during a read operation on a set of lines called the data bus. Okay, so डेटा जो ट्रेवल करता है वो डेटा बस पर ट्रेवल करता है, और जो एड्रेस जिस पर हम देते हैं दैट इज कॉल्ड द एड्रेस बस. ओके, सो मल्टीपल लाइंस को हम बस बोलते हैं. जैसे कि अगर 8 लाइन हम डेटा की बात कर रहे हैं कि डेटा एक बार में 8 लाइंस के थ्रू ट्रांसफर किया जा सकता है, या 8 बिट डेटा एक बार में ट्रांसफर किया जा सकता है, तो उसे डेटा बस जो है वो 8 बिट की होगी. ठीक है, तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं. सो सेट ऑफ लाइंस कॉल्ड द डेटा बस. ठीक है, तो डिपेंड करता है हम कौन सा टाइप का हमारा सिस्टम कितना डेटा को एक बार प्रोसेस कर सकता है, उसे हमारा डेटा बस साइज डिफाइन होता है. ओके, या डेटा बस साइज डिफाइन करने के बाद हम बता देते हैं कि डेटा बस का साइज अगर 8 बिट है, 8 बिट डेटा ही उससे ट्रेवल कर सकता है, 8 बिट डेटा उसमें एक बार में प्रोसेस हो सकता है. as shown in figure 11.5. अभी हम देखेंगे नीचे 11.5 का है. The data bus is bidirectional. Bidirectional आपको शिफ्ट रजिस्टर की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी. ठीक है, bidirectional के दोनों तरफ डेटा ट्रांसफर कर सकता है ये, which means the data can go in either direction, into the memory or out of the memory. शिफ्ट रजिस्टर का आपको पहले पर्पस पता है. शिफ्ट रजिस्टर का बेसिक पर्पस डेटा स्टोर करना होता है. ठीक है, अगर ये स्टोर करने के बाद एक ही तरफ से डेटा इंटर होता है, दूसरी तरफ से निकलता है, एग्जिट होता है, सो दैट इज यूनिडायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर. अगर if it can enter or exit from both sides, then it is a bidirectional. In this case of byte organized, I'll show you. फिर अगर हम दिखाएंगे अभी इतना ज्यादा इन जरूरत नहीं है. I'll show you the figure 11.5. In this case of what you should remember that the data bus is bidirectional. In this case of byte organized memories, the data bus has at least 8 lines, so that all 8 bits in a selected address are transferred in parallel. वही बात मैंने आपसे कही कि डेटा कितनी 8 लाइंस हैं, कम से कम होती हैं ज्यादातर. ठीक है, एटलीस्ट 8 लाइंस होती हैं, ताकि क्या हो, एक बार हम 8 बिट्स को ट्रांसफर कर सकें. जो मॉडर्न प्रोसेसर्स हैं वो 64 बिट भी सपोर्ट करते हैं, सो वी कैन ट्रांसमिट
64 or process our 64-bit data at a time. Okay, so whatever the address we selected, this much amount of bit can be transferred in parallel. For a read or write operation, an address is selected by placing a binary code representing the desired address on a set of lines called the address bus. I've just told that that we place the address of particular memory location where we want to do any particular operation, read or write. Okay, so this address travels through the or goes through the address bus. Okay, the address code is decoded internally. Okay, so address code may have some decoding. Okay, so it is decoded internally, that is not our part. Okay, it is decoded internally and appropriate address is selected. जैसे कि हमने प्रीवियस इससे पहले रोम में देखा था, अगर मैं आपको इसे दिखा दूं, जैसे कि वो हमने यहाँ पर किया था कि यहाँ पर हमने 4 लाइंस थी, ठीक है, यहाँ पर 4 लाइंस थी, एड्रेस लाइन तो ये 4 थी, लेकिन ये 16 लोकेशन को एड्रेस कर रहा था, ठीक है। सो ये किस लोकेशन कैसे कौन करेगा, ये डिकोडर पर डिपेंड करता है हम कैसा डिकोडर बना रखा है हमने इसे, ठीक है। सो ये 4 to 16 डिकोडर भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, 4 to 12 भी हो सकता है, कुछ लाइन हो सकता है एक्टिव ना हो, या कुछ और कन्वर्ट डिकोडिंग हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। The address code is decoded internally and appropriate address is selected. Okay, तो हमें 4 लाइन की 001 कौन सा एड्रेस सेलेक्ट होगा वो internally decode होता है, that's not our interest. In the case of multiple array memory, अभी हम B में दिखाई गई, there are 2 decoders, one for the rows and one for the columns. ठीक है, अगर यही बात है कि जैसे मैंने आपको मैट्रिक्स का एग्जांपल दिया था, किसी चीज से कोई कंफ्यूज मत करिए, काफी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे मैंने आपको मैट्रिक्स का एग्जांपल दिया था, मैट्रिक्स में क्या होते हैं, रोज होती हैं, ओके, और क्या होते हैं, ओके, सो देयर आर रोज, सो यहाँ पर कॉलम भी होते हैं, ठीक है। सो मैट्रिक्स में रोज और कॉलम दोनों होते हैं। सो जब कोई चीज 2 डायमेंशनल हो जाती है, सो वी नीड अ 2 डायमेंशनल एड्रेस। ओके, तो अब अगर हमें किसी मैट्रिक्स का एक एलिमेंट बताना होता है तो उसकी रो बतानी होती है और साथ में क्या बताना होता है, वी हैव टू टेल द कॉलम। So accordingly we tell the row and column and we can read that particular element of the matrix. Similarly अगर हमारी मेमोरी बाई 2 डायमेंशनल एरे है तो हमें क्या करना पड़ेगा, we need a 2 set of मल्टीपल एरे मेमोरी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 set of डिकोडर चाहिए पड़ेंगे, एक जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेस करेगा और दूसरा वर्टिकल लाइन को जो हमारा रीड करेगा। The number of lines in address bus depends on the capacity, कितना कैपेसिटी है और कितनी हम एड्रेस लाइन रखें वो उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। कि जैसे मैंने आपको बताया कि 4 लाइन से हम कितनी 16 लाइन को रीड कर सकते हैं, ठीक है, 5 लाइन से 32 लाइन रीड कर सकते हैं, तो कितनी एड्रेस लाइन हमें जरूरत होनी चाहिए हम कोई मेमोरी की, सो वो डिपेंड करता है कि मेमोरी का साइज क्या है, ठीक है। जितनी ज्यादा साइज बढ़ता जाएगा तो नंबर ऑफ एड्रेस लाइन के लिए बढ़ती जाएंगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि हमें अगर 15 बिट एड्रेस कोड ट्रैक करने के लिए हमें 15 बिट अगर हम एड्रेस कोड ले लेते हैं तो हम कितनी मेमोरी को लोकेशन को डिकोड कर सकते हैं, 32,768 को कर सकते हैं, और 16 बिट ले लें तो हम 65,536 लोकेशन को हम एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मैं इससे आगे जाने से पहले आपको मैं 11.5 एक बार दिखाता हूँ। सो दिस इज 11.5a, इसमें क्या है, एड्रेस बस दिखा रखी है, ठीक है, एड्रेस डिकोडर लगा रखा है, ये एड्रेस को डिकोड करेगा कौन सा एड्रेस किसे सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। देन इट इज द मेमोरी एरे, ठीक है, इसमें कहाँ पर कौन सी लोकेशन है ये एड्रेस के अकॉर्डिंग इसको रीड करेगा, ठीक है। और रीड और राइट कौन सा ऑपरेशन करना है ये यहाँ से डिसाइड होगा। रीड इनेबल है तो उस मेमोरी लोकेशन से रीड होगा और डेटा यहाँ पर बाहर चला जाएगा, डेटा बस में चला जाएगा,
ठीक है। और अगर हमें इसे राइट करना है तो डेटा बस पर उस डेटा को दे करके या डेटा बस से डेटा आएगा और उस मेमोरी लोकेशन पर राइटिंग हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द सिंगल एरे। इफ इट इज टू एरे, इसमें एड्रेस के लिए आपको रो डिकोडर और वर्टिकल कॉलम डिकोडर अलग अलग चाहिए पड़े। सो फॉर दैट वी नीड टू डिफरेंट डिकोडर्स। ठीक है, एड्रेस बस दोनों में ही जाएगी, रो डिकोडर में भी और कॉलम डिकोडर में भी। अकॉर्डिंगली उनकी रो और कॉलम डिसाइड होकर के उसका जो करस्पॉन्डिंग डेटा होगा रीड और राइट ऑपरेशन बेसिस पर डेटा बस पर हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो ये राइट ऑपरेशन में इसी होगा। सो 11.6 में देख लिए, पहले 11.6 को थ्योरी पढ़ने हुए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एड्रेस रजिस्टर, so what we have in address register 0101, so this is the address bus। ठीक है, तो ये एड्रेस रजिस्टर हमने मान लिया कि 3 बिट का एड्रेस रजिस्टर है, तो बाई 3 बिट वी कैन रीड 8 मेमोरी लोकेशन। तो आप देख लीजिए 8 मेमोरी लोकेशन यहाँ पर हमने बना दी हैं। तो ये एड्रेस बस का साइज कितना होगा, 3 बिट का एड्रेस बस होगी ये। ठीक है, तो एड्रेस बस पर ये हमने एड्रेस दिया, तो ये इस एड्रेस बस पर अवेलेबल होगा। यहाँ आएगा, डिकोड करेगा 101। 101 देखा जाए तो ये 5 को सिग्निफाई करता है, तो ये इसको सिग्निफाई करेगा। ठीक है, तो इस वाली रो को ये रीड करेगा, इस वाली रो पर जाएगा। अभी हमें पता नहीं है कि ऑपरेशन कौन सा रीड करना है या राइट ऑपरेशन करना है। ठीक है, अगर हम राइट ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, तो डेटा बस पर जो डेटा अवेलेबल होगा, ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं, इस पर यहाँ पर पहले से क्या लिखा हुआ है उससे मतलब हम राइट ऑपरेशन करेंगे तो हमें कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ओके, सो जो भी डेटा रजिस्टर में हमारा जो डेटा होगा ये डेटा बस के थ्रू आएगा और यहाँ पर उसको लिख दिया जाएगा, दैट विल बी द, और ये लिख दिया जाएगा, दैट विल बी द राइट ऑपरेशन। तो एड्रेस ने क्या किया, एड्रेस बस ने उसको सिलेक्ट किया लोकेशन को और डेटा बस ने उस पर अपना डेटा प्लेस कर दिया। अगर ये रीड ऑपरेशन कर दिया जाए तो रीड ऑपरेशन में क्या चेंज हो जाएगा, जब हम इसको रीड ऑपरेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि मेमोरी लोकेशन यहाँ से जो भी होगी ये उसको पॉइंट करेगी, सपोज ये 5 को पॉइंट करेगी और पहले से इसमें जो डेटा अवेलेबल है वो डेटा क्या होगा, डेटा बस को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, जो डेटा पहले से इसमें अवेलेबल होगा और डेटा बस क्या करेगी, डेटा रजिस्टर में ले जाएगी इसको, और फिर डेटा रजिस्टर से ये कैलकुलेशन में उसको एडिशन करना है या चेंज करना है या उसको मल्टीप्लिकेशन करना है या शिफ्ट राइट शिफ्ट लेफ्ट जो भी ऑपरेशन करना है उसके साथ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रीड और राइट का जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, मैंने दोनों को एक में ही समझा दिया। ठीक है, बस एरो देख लीजिए, राइट ऑपरेशन रीड ऑपरेशन होता है तो यहाँ से डेटा बस लेके जा रही है, एरो को डेटा रजिस्टर में सप्लाई कर दे रही है, और जब यहाँ पर राइट ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो डेटा रजिस्टर से ला करके इस लोकेशन पर राइट कर दे रही है। Okay, I hope this is clear to all of you. So this is the basic read and write operation. Okay, so now we'll see about the RAMs.